नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। साबिक वजीर और खैरताबाद के TRS रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने आज डॉक्टर GS मलकोटे पार्क हिमायतनगर में साफ हैदराबाद शानदार हैदराबाद के तहत आरास्ता तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया और पार्क में शजरकारी के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर शहरियों के अलावा बल्दी अहदेदार और हिमायतनगर की कॉर्पोरेटर हेमालता, डॉक्टर मलकोटे पार्क के सदर भुवनेश्वर राव और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वजीर टूरिज्म श्रीनिवास गौड़ ने रियासत में सियाहत के फरोग और हादसा से बचने अवामी शऊर की बेदारी के लिए एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली का आगाज तारीखी चार मीनार से हुआ। उन्होंने इस मौके पर बताया कि रियासती हुकूमत सियाहत के फरोग और सयाहों को राग़िब करने के लिए कई इक़दाम कर रही है। सयाहों की हिफाजत और सियानत पर भी खास तवज्जो दी जा रही है ताकि वो अपने क़याम के दौरान खुद को महफूज महसूस कर सके। दुनिया का हर मुल्क आज सियाहत के जरिए अपनी आमदनी में इजाफे के लिए कोशां है। हिंदुस्तान मेहमान नवाज मुल्क है और हैदराबाद मेहमान नवाजी में सब में सर फहरिस्त है। ఇందులో భాగంగా జయభారతి గారు, కలీం గారు, మేజర్ కలీం గారు, సందీప్ గారు, శాంతి గారు, మురళి గారు, శుభజిత్ గారు, సదాశివ రెడ్డి గారు, CII కాన్ఫెడరేషన్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. 50, 60, 70 దేశాలు బైక్ మీద తిరిగినటువంటి బైక్ రైడర్స్ ఈరోజు టూరిజం ప్రమోషన్లో భాగంగా చార్మినార్ నుంచి మయూరి, వార్క్, మహబూబ్ నగర్ మరి ఇతర ప్రాంతాలను పర్యటించి బైక్ రైడర్స్కు ఎంకరేజ్ చేయడము, హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి హెల్మెట్ పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా నడపడం, హెల్మెట్ ప్రాధాన్యత, దాంతోపాటు చారిత్రాత్మకమైనటువంటి మన సంపదను తెలియజేయడం టూరిజం ప్రమోషన్ల భాగంగా మరి మురళి గారు ఇంకా చాలామంది కూడా బైక్ రైడర్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ నుంచి చార్మినార్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి మనం చెప్పడం జరిగింది. మరి చార్మినార్ టు మయూర్ పార్క్ వరకు ఈరోజు అందరు వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరు హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి అని ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వడం, బైక్ రైడర్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరిగినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్పడం, చారిత్రమైనటువంటి మన ప్రాంతాలను మనం ప్రమోట్ చేసుకోవడం, దేశంలో భారతదేశంలో ఎక్కడ లేనటువంటి చారిత్రక కట్టడాలు మన తెలంగాణలో ఉన్నాయి. టూరిజంకు ఎంతో అనువైనటువంటి ప్రాంతం ఇది. ఇతర దేశస్తులు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత, తెలంగాణలో పర్యటించిన తర్వాత మానవుడు పుట్టినప్పటి నుంచి ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయి ఇక్కడ కృష్ణానది తీరంలో అని. దాదాపు 10,000 సంవత్సరాల క్రితం అప్పుడు చరిత్ర కూడా ఉంది. క్రీస్తు పూర్వం చరిత్ర కూడా ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉంది. 10,000 సంవత్సరాల క్రితం దొరికిన ఆనవాళ్ళు మనం చూసాం. క్రీస్తు పూర్వం బుద్ధుడు ఆనవాళ్ళు కూడా మన నల్గొండ జిల్లాలో బయటపడడం జరిగింది. అవే కాకుండా చారిత్రాత్మకమైనటువంటి కళలు, సంపద, కట్టడాలు, ఎంతో గొప్ప చరిత్ర కృష్ణానది తీరంలో మనిషి పుట్టినప్పటి నాటి ఆనవాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి. అక్కడ నది తీరంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం చరిత్ర కూడా ఇక్కడ ఉంది. నాగరికత పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ గడ్డ మీద తెలంగాణలో చరిత్ర ఉంది అనేటువంటి ఆనవాళ్ళు మనం తెలుసుకున్నాం. ఇవన్నీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలియజేయడానికి, టూరిజంని తెలంగాణలో డెవలప్ చేసుకోవడానికి, మన దానిలో 10% చరిత్ర లేనటువంటి దేశాలు టూరిజంలో అగ్రగామిగా ఉండి ఆ దేశానికి సంపద మొత్తం టూరిజం ద్వారా అత్యధికంగా వచ్చినటువంటి దేశాలు కూడా మన కళ్ళ ముందర ఉన్నాయి. అంతకన్నా గొప్ప ఘనకీర్తినటువంటి ఈ ప్రాంతం భవిష్యత్తులో ఇంకా పెద్ద టూరిజం ప్లేస్ చేయాలని మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మరి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా ఎన్నో ప్రాంతాలు, కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాంతాలు, మేటిగడ్డ, కన్నెపల్లి, ధర్మపురి వరకు దాదాపు 140 కిలోమీటర్లు మొత్తం కూడా నదిలో ఎప్పటికీ నీళ్లు ఉండే విధంగా బ్యారేజ్లు కూడా ఏర్పాటు చేసి అతిపెద్ద టూరిజం స్పాట్ కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. కనుక ఈరోజు మహిళలు అయినట్టు మా జయభారతి గారు, శాంత, వీళ్ళందరూ కూడా మహిళలుగా ఉండి కూడా వాళ్ళు
దాదాపు వరల్డ్ వైడ్గా ఎన్నో కంట్రీస్ తిరిగినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. కనుక అంత గొప్ప మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి త్యాగం చేసినటువంటి ఈ బైక్ రైడర్స్ వాళ్ళ వెంబడి నేను ఇక్కడి నుంచి మామూలు వెళ్తున్నాను. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎక్కడ వెళ్ళినా ఒక చారిత్రాత్మక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక చారిత్రాత్మక ప్రాంతానికి వెళ్ళేటట్టు ప్లాన్ చేసుకొని అన్ని విధాలుగా మన టూరిజం ప్రమోషన్తో పాటు బైక్ రైడర్ తీసుకొచ్చిన జాగ్రత్తలను తెలియజేయడానికి ఎంతోమంది మనం చూస్తున్నాం. రోడ్ల మీద 2 వీలర్స్ ప్రమాదంలో అనేక మంది చనిపోయింటారు. కేవలం రూల్స్ పాటించకపోవడం వల్ల, హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం వల్ల అనేటువంటి ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. దానికి కూడా సందేశం ఇచ్చినట్టు అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి ఈరోజు వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది. ఖచ్చితంగా మా చరిత్రాత్మక ప్రాంతాలను ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇంకా మంచి అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు ప్రమోట్ చేస్తాం. मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज अपने पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के तहत अंबरपेट के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया, जिनमें फीवर हॉस्पिटल, नल्ला कुंटा वगैरह शामिल थे। उन्होंने अवामी मसाइल की समाअत की और उनके हल का तयक़ुन दिया। मरकजी काबीना में शमूलियत के बाद किशन रेड्डी की इस इलाके में पहली बार आमद पर ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। वो इस इलाके की असम्बली में नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि वो आवाम की खिदमत के लिए हमेशा दस्तियाब रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो आवाम के मशकूर हैं जिन्होंने उनको असम्बली और पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत से चुनकर भिजाया। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. सनशाइन फाउंडेशन की जानिब से महमूदनगर हसन नगर के आंगनवाड़ी स्कूल में बच्चों में स्लेट और बिस्किट तकसीम किए गए। इस मौके पर एरिया सभा रुकन मोहम्मद जहांगीर, सदस्य सनशाइन फाउंडेशन अब्दुल वहीद और दूसरे भी मौजूद थे। फाउंडेशन जो है बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटीज़ में है। ये छोटे छोटे काम जो है बहुत बड़ा काम है। ये आंगनबाड़ी स्कूल में ये गरीब बच्चों को जो है स्लेट्स और बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। उन लोगों को जो है स्लेट्स पे लिखने करने की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर ही नहीं बल्कि नहीं, राजीव नगर, सुलेमान नगर और हसन नगर, इंदिरा नगर में हर जगह जो है सनशाइन फाउंडेशन की तरफ से बच्चों में, आंगनबाड़ी स्कूल के बच्चों में स्लेट्स बिस्किट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और लोग स्कूल की कारकर्दगी कैसी है, क्या है, उसको अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये कहते दूसरे और भी फलाही काम जो है सनशाइन फाउंडेशन की जानिब से किया जा रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सनशाइन फाउंडेशन का, जो है ऐसे सामाजिक खिदमत में लगे हुए हैं। और सनशाइन फाउंडेशन के सदर जो है हमारे वहीद साहब और तमाम मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है। इन लोगों का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे मोहल्ला महमूद नगर, हसन नगर में भी जो है ऐसे समाजी खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, मैं मोहम्मद अब्दुल वहीद, फाउंडर ऑफ सनशाइन फाउंडेशन। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एरिया सभा मेंबर जहांगीर साहब का, जिन्होंने हमारे खिदमत को हौसला अफजाई किया। और इंशाअल्लाह अल्लाह का साथ हमारे साथ रहा। इंशाअल्लाह यहाँ के तमाम जो भी सामाजिक कारकुन हैं सबका साथ के साथ हम इंशाअल्लाह और भी आगे बढ़ेंगे और भी ऐसे खिदमत को अंजाम देंगे। और बच्चों के एजुकेशन के लिए, एजुकेशन अवेयरनेस के लिए, बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए हमारी टीम जितना हमारे से हो सके उतना आगे बढ़ेगी, ताकि हमारा देश का हर बच्चा आगे बढ़कर वो भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सनशाइन फाउंडेशन की जानिब से हसन नगर, इंदिरा नगर के हल्के में
जनाब जहांगीर साहब जो एरिया सभा मेंबर है, उनकी बहुत शुक्रगुजार है हम। उनके एरिया में आके हमको एक खिदमत का मौका मिला और जो मासूम बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है उनको एजुकेशन के वास्ते एक अवेयरनेस सनशाइन फाउंडेशन की जानिब से हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप सभी का अगर साथ हो तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो मासूम बच्चे जो एजुकेशन के लिए हम लोग आंगनबाड़ी स्कूल में डाले तो वो लोग जो है आदि होना क्लासेस अटेंड करने के, उनका बचपन जो है हम लाड़ा में, हम मोहब्बत में, हम हमारे करीब रखने से बच्चे जो है स्कूल में जब एडमिशन दाखिला लेते तो बच्चे स्कूल को जाने के लिए ज़िद करते। तो आंगनबाड़ी एक ऐसा इदारा है जिसमें बच्चों को आदत होना है स्कूल में बैठने की। तो यहाँ से एक फाउंडेशन है जो ये बुनियाद है, यहाँ पर बच्चों में छोड़ने के बाद बच्चे स्कूलों में आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम ये जो काम को अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह हमारी जो है मदद करेगा, इंशाअल्लाह हम इसको आगे बढ़ाएंगे। खुदा हाफिज़। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की सिटी यूनिट ने शहर के सुपर स्पेशलिटी दवाखाने गांधी हॉस्पिटल में साफ सफाई के नाक़िस इंतजाम पर गहरे तासुब का इजहार किया और गांधी हॉस्पिटल में जमा कचरे के अंबार की सफाई का पुरजोर मुतालबा किया। सिटी सेक्रेटरी महेंद्र ने कहा कि दवाखाने के अमले की लापरवाही और गफलत के सबब दवाखाने में बदबू और ताफुन फैल चुका है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा लाक हो चुका है। చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి హాస్పిటల్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాదు ఉభయ రాష్ట్రాల అనేక ప్రాంతాల నుంచి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి గాంధీ హాస్పిటల్కి అనేక మంది పేద రోగులు ఇక్కడికి రావడం జరుగుతూ ఉంది। దీనిని మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈరోజు తెలంగాణలోనే సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్గా మార్చుతా అని చెప్పేసి అనేక రకమైన సందర్భాల్లో చెప్పారు। ఇప్పుడు మనం సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్గా చెప్తున్నటువంటి గాంధీ హాస్పిటల్ చిన్నపిల్లల వార్డు పరిధిలో మనం ఇక్కడ ఉన్నాం। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తే ఒక్కసారి ఆలోచించండి। ఇక్కడ పక్కననే చెత్త డంప్ మొత్తం ఇది ఒక పెద్ద చెత్త డంప్ లాగా మనకు కనబడతా ఉంది। ఇక్కడ చెత్త చెదారంతో హాస్పిటల్ పక్క డిస్టెన్స్ తోటే ఇంత పెద్ద చెత్తతోటి ఉన్నది। ఇక్కడ సూపరింటెండెంట్ కానీ గాంధీ అధికారులు వచ్చినటువంటి పిల్లలే ఈరోజు అనేక మంది పేద గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి ఆ పూటకు తిండి లేక డబ్బులు లేక అనాథగా ఉన్నటువంటి అనేక మంది పేద ప్రజలు గాంధీ హాస్పిటల్ని నమ్ముకొని వస్తూ ఉన్నారు। కానీ గాంధీ హాస్పిటల్లో రోగులను నయం చేయడం కాదు, కొత్త రోగాలను క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం, కొత్త రోగాలని కల్పించుకోవడం కోసం వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। అనేక సందర్భాల్లో గాంధీ హాస్పిటల్ ఉన్నటువంటి అధికారులకు చెప్పాం, గాంధీ హాస్పిటల్ అనేటువంటిది పెద్ద హాస్పిటల్, దీనికి లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ప్రభుత్వం వెచ్చిస్తా ఉంది। దీనిని పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి, నీట్గా ఉంచాలి, అట్లనే ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా సంతోషంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాం। కానీ అధికారులు కానీ దీనిని కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే ఎజిల్ గ్రూప్ అనేటువంటి సంస్థ దీనిని ఈరోజు చెత్త చెదారం లేకుండా నీట్నెస్ కోసం కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంది। కానీ సూపరింటెండెంట్ ఎజిల్ గ్రూప్ అధినేతలు ఇద్దరు కలిసి కుమ్మక్కయి ఈరోజు చెత్త ఎత్తిపోయకుండా ఈరోజు చేస్తా ఉన్నారా, లేకపోతే వస్తున్నటువంటి పిల్లలకు కానీ ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి రోగులకి కొత్త సమస్యలు వచ్చేటట్టు చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారా అర్థం కాదు। కాబట్టి ఇప్పటికైనా చెప్తా ఉన్నాం, డివైఎఫ్ఐగా మేము ఈరోజు హాస్పిటల్ని సందర్శిస్తా ఉన్నాం, ఈ చెత్తను ఎత్తిపోయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లల యొక్క ఆరోగ్యాలని వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళకి మంచి సౌకర్యాలని మంచి ట్రీట్మెంట్ ని కల్పించాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం పైన ఉంది, అధికారుల పైన ఉంది, డాక్టర్ల పైన ఉంది। కానీ వాళ్ళు ఒక ఉద్యోగం చేసుకుని వెళ్తా ఉన్నారని చెప్పేసి పొద్దున 9-10 గంటలకు వచ్చేసి 4 గంటలకు వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు। కానీ హాస్పిటల్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు నీట్ గా ఉన్నాయా లేదా, అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి, చెత్త ఎట్లా ఉంది, చిన్నపిల్లల యొక్క సౌకర్యాలు అందుతున్నాయా లేదనేటువంటి మినిమం అవేర్నెస్ లేకుండా, అవేర్నెస్ కల్పించకుండా, అవగాహన లేకుండా గాంధీ హాస్పిటల్ ఉన్నటువంటి అధికారులు డాక్టర్లు చేస్తా ఉన్నారు। ఇది సరి అయినటువంటి పద్ధతి కాదని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తాను। ఇప్పటికైనా చెత్తని వెంటనే ఎత్తిపోయాలి, ఎత్తిపోయకపోతే డివైఎఫ్ఐగా మేమే ఈరోజు ప్రభుత్వం చేత కాదు, గాంధీ హాస్పిటల్ ఉన్నటువంటి అధికారులకు చేత కాదు, వాళ్ళు డబ్బుల కోసం ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు తప్ప ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేషెంట్ల కోసం కానీ ప్రజల కోసం ఉద్యోగాలు చేస్తలేరనేటువంటి ఒక నిరసన తెలియజేసి మేమే గాంధీ హాస్పిటల్లో భిక్షాటన చేసి ఈ చెత్తను మొత్తం కూడా మేమే డివైఎఫ్ఐ బృందం అందరం కలిసి ఈ హాస్పిటల్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతాం। దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వెంటనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చెత్త డంపిని ఎత్తేసి బాక్సులు పెట్టి ఏమాత్రం కంపు వాసన రాకుండా, దోమలు ఈగలు రాకుండా వాటికి కవర్ వేసి ప్రతిరోజు చెత్తని హాస్పిటల్ నుంచి ఎత్తిపోయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। तेलुगुदेशम के साबिक वजीर और जगतियाल के हरकयाती अवामी लीडर राजेशम गौड़ आज बीजेपी में शामिल हो गए। निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट
डी अरविंद की जानिब से पार्टी की रुकने-साजी की मुहिम के दौरान मुनक्किदा एक तकरीब में राजेश्वरी गौड़ ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत को खराज तहसीन अदा किया और कहा कि बीजेपी मुल्क की तरक्की का एक विजन रखती है। 2019 के इंतखाबात में अवाम ने जिस भारी अक्सरियत से बीजेपी को दोबारा इख्तियार सौंपा है वो हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या है। हाज़िमीन हज के टीके अंदाजी के 3 रोज़ा प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। हज कमेटी की तरफ से हज हाउस में मुनक्किदा इस कैंप में अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सदर-ए-नशीन हज कमेटी मसूदुल्लाह खान ने अवैसी हॉस्पिटल के ताउन पर इंतजामिया से इज़हार तशक्कुर किया। डॉक्टर मोहम्मद यासीन अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चेयरमैन दारुसलाम एजुकेशनल ट्रस्ट दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस ग्रुप ऑफ अवैसी हॉस्पिटल की तरफ से जनाब अकबरुद्दीन अवैसी मैनेजिंग डायरेक्टर की हिदायत पर हर साल की तरह जो है हज तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से जो यहाँ पर हाजियों की जो खिदमत जो अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ करते हैं, जब से फॉर्म इशू करते हैं तो वापिस आए तक तमाम मेडिकल टीम जो हाजियों की खिदमत में रहती है। जहाँ तक है हम जो अब वैक्सीनेशन अभी जो यहाँ पर महमूद अली साहब जो हमारे होम मिनिस्टर साहब जो इफ्तिदा किए थे, हर साल जो है हज हाउस में 3 दिन रखते हैं, उसके बाद 2 दिन जो है असरा हॉस्पिटल में रहते हैं। इंशाल्लाह 11, 12, 13 हज हाउस में आज कंप्लीट हो चुका है। 3000 से ज़्यादा जो है हाजियाँ यहाँ पर इस्तेफादा किए हैं। इंशाल्लाह बाकी के जो हाजियाँ बचेंगे उनको जो है जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल चाली मुंडे पर 2 बजे से 5 बजे तक वहाँ पर जो है कैंप रखे हैं, उन्हें इब्तिदा करेंगे। आप तमाम जो है तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जानिब से जो हाजियाँ जाएंगे उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा और वहाँ पोलियो पिलाया जाएगा। 70 साल की उम्र जिसकी होंगी पासपोर्ट में उनको भी जो है मैनेजाइटिस भी दिया जाएगा, 2 इंजेक्शन दिया जाएगा। तो इसी तरह जो है जब यहाँ पर से जब पहला फ्लाइट 26 तारीख को जो शुरू हो रहा है, उसके बाद से 4 अगस्त तक तमाम हाजियों के लिए इमरजेंसी जो है यहाँ पर अकबरुद्दीन साहब की हिदायत पे 24 घंटे हमारी जो है यहाँ पर मेडिकल कैंप रहता है हज कैंप में। वहाँ पर जो अगर कोई हाजिस को जो है जिस तरह जो है जो रोज़मर्रा के जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो दवाएं के वास्ते अगर कोई फैमिली डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रख लिए हैं लेटर हेड पे तो मुनासिब है। अगर नए रहने की सूरत पे किसी को जो छूट गए हाजी को तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स रहते हैं, उनसे दवाएं लाकर हाजी आकर वहाँ पर बताकर हाजी सामने रहे तो प्रिस्क्रिप्शन आपका सामने लिख के देते हैं, वो रख लीजिए। और एक जो है साथ साथ मैं एक मशवरा दे रहा हूँ कि तमाम हाजी साहबान जो अगर आप 1.5 महीने के सफ़र पे जा रहे हैं तो 2 महीने के दवाएं रख लीजिए, आपके 3 बैग में जो है डिवाइड करके रख लीजिए ताकि जो है एक आध बैग कहीं पर भी मिस होगा तो आपकी दवा में नहीं छूटना। सफ़र में जा रहे हैं, सफ़र के हिसाब से अपना जो है दवाएं टाइम पे खाना चाहिए, ग़िज़ा खाना चाहिए। 3 टाइम के बदले में 4 टाइम खाइए, लेकिन ग़िज़ा पर बराबर तवज्जो देते हुए अपने को जो है हेल्थ को बरकरार रखते हुए अपने मुनासिब हज पूरा करना चाहिए। और मैं तमाम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का पूरे स्टाफ हमारे साथ कोऑपरेट करता है। और जो मैं तमाम हमारे अवैसी ग्रुप हॉस्पिटल की तरफ से मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन साहब के लिए दुआ की भी दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि सदर मोहतरम सालार मिल्लत जो है जब से यहाँ पर फाउंडेशन डाले थे पूरे आंध्र प्रदेश के डायरेक्ट फ्लाइटों की जब से, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हमारे अकबर साहब ने यही कहते हैं कि जिस तरह पहले से करते आ रहे हर साल अच्छे से अच्छा जो हाजियों की खिदमत के लिए कोई तकलीफ नहीं हुई, जैसा हमारे तरफ से जितनी हुई कोशिश पूरी करना, अच्छा से अच्छा करना होगा। शुक्रिया। जारिया मानसून के दौरान नाकाफी बारिश के पस मंजर में आज शहर के सैकड़ों मुसलमानों ने बारान रहमत के लिए ईदगाह मीर आलम पर नमाज सख्सा अदा की और रख्त अंगेज दुआ की। मौलाना सफ़ीउर रहमान मदनी इमाम व खतीब मस्जिद उस्मान बिन नफ़ान ने बताया कि इस नमाज में मुकामी लोगों की बड़ी तादाद शरीक थी। मैं सफ़ीउर रहमान मदनी इमाम व खतीब मस्जिद उस्मान बिन नफ़ान ज़ुन्नूरैन ताड़वन, यहाँ पर आज बरोज़ इतवार 14 जुलाई को 2019 को आज मीर आलम ईदगाह पर जो है सलातुल इस्तिस्क़ा अदा की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन से ऐलानात किए जा रहे थे, ज़िम्मेदार मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारों ने हर तरफ ऐलान करवाया कि सलात इस्तिस्क़ा अदा की जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे मौसम बरसात के मौसम का एक काफ़ी हिस्सा निकल चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो हमारे मुसलमानों का ये फ़ेथ है, ये अक़ीदा है कि अगर अल्लाह ताला बारिश नहीं नाजिल करता है तो हम इंसानों के पाप के सबब, ये गुनाहों के सबब बारिश नहीं होती है।
तो हमारे प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो मैसेंजर हैं उन्होंने ये तालीम दी हमको कि अगर बारिश नहीं नाजिल हो मौसम के अंदर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुले मैदान में निकल करके ईदगाह वगैरह में अल्लाह से दुआ करें, नमाज अदा करें, गिड़गड़ाएं, ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश नाजिल करे। इसी मकसद के तहत हम लोग आज यहाँ पर मीर आलम ईदगाह पर जमा हुए और जमा होकर के हमने यहाँ पर मर्द और औरतें सारे लोग मौजूद थे, बच्चे भी थे माशाल्लाह, सब लोगों ने नमाज इस्तिस्का अदा की और अल्लाह से भी हमें उम्मीद है ज़रूर बेज़रूर अल्लाह ताला सारे हिंदुस्तान के अंदर खैर व बरकत और अमन वाली बारिश नाजिल फरमाएगा। अभी बम्बई के अंदर बारिश हो रही है लेकिन वो हमारे लिए अमन नहीं है बल्कि वो उल्टा नुकसान हो रहा है, यानी कि हम ये समझते हैं कि अल्लाह का कहीं ना कहीं अजाब हो सकता है। तो हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला वहाँ जो बारिश हो रही है उसको भी अमन वाली खैर वाली बनाए, वहाँ पर जो तूफ़ान वगैरह जो आया अल्लाह उसको दूर कर दे, वहाँ के लोगों को राहत और सुकून के साथ जीने की तौफीक इनात फरमाए। और मैं आखिर में ईदगाह के भी मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी जानिब से और उस कमेटी के ज़िम्मेदारान की जानिब से जिन्होंने हमें यहाँ पर मौका दिया सलात इस्तिस्का अदा करने की। मौलाना ये उल्टे हाथ करके दुआ करने का और नमाज इस्तिस्का के बाद हम लोग खुतबा देते हैं, खुतबे में उल्टे हाथ से दुआ करते हैं और चादर जो होती है कोट होता है उसको भी पलटा करके हम दुआ करते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की जो हालत जो पहले थी वो बदल गई है, यानी पानी नहीं पड़ रहा, पहले पानी पड़ता था पानी नहीं पड़ रहा, तो अल्लाह हमारी अब हालत जो बदल गई उसको अच्छी हालत से तब्दील कर दे। इस वजह से हम लोग हाथ उल्टे करके अल्लाह से दुआ मांगते हैं या जो चादर होती है उसको उल्टा करते हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजिबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। टॉप साउथ जोन के मुगलपरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ सुल्तान शाही में कल रात कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया जिसमें 110 से ज़ायद पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मीर चौक आनंद ने बताया कि 150 घरों की तलाशी ली गई, 15 रोड शीटों को जमा करके उनकी काउंसलिंग की गई और बोनाल के पेश नज़र उनकी सख्त तंबीह भी की गई। 57 टू व्हीलर्स को जिनके दस्तावेजात नहीं थे जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि आवाम ने पुलिस से अपने बल्दी और आबरसानी मसाइल की भी शिकायत की और पुलिस मुतल्लिक़ा महकमों से इस ज़िम्मन में नुमाइंदगी करके उनकी यकसुई करेगी। आज मुगलपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में सुल्तान शाही एरिया, पूरा एरिया में साउथ जोन DCP अंबर किशोर सर सुपरविजन में हम कार्डन सर्च करें। ये कार्डन सर्च में हमारा पुलिस 110 मेंबर्स पार्टिसिपेट करे और हम रिक्वेस्ट करें पब्लिक को ये बोनालू अकेजन में कोऑपरेशन देना है। हम भी पब्लिक के लिए काम करने को रेडी है बोल के मैसेज दे रहे हैं। और ये कार्डन सर्च में हम 150 घर चेक करें। अभी तक पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में है। ये कार्डन सर्च में 15 राउडी शीटर्स को हम चेक करें, काउंसलिंग भी करें बोनालू के लिए और डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है सो 57 टू व्हीलर्स को हम सीज करें और फेल्ट नीड भी हम आइडेंटिफाई करें। सुल्तान शाही में पीने का पानी में ड्रेनेज वाटर मिक्स हो रहे बोल के पब्लिक कंप्लेंट करे हमारा को
हम हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से GHMC को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैक्सिमम 15-20 दिन में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने को हम कोशिश करते हैं। थैंक यू। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। स्पोर्ट्स और टूरिज्म के रियासती वजीर जी श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर टाउन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और उनकी आजिलाना तकमील की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने स्टेशन रोड पर 1.5 करोड़ रुपए के मसारिफ से सड़क की तामीर के काम का जायजा लिया। बाद उन्होंने चंद तरक्याती और तामीरी कामों का संग बुनियाद भी रखा। श्रीनिवास गौड़ ने गिरिजन एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तकरीब में शिरकत की और तालीमी मैदान में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तुलबा और तलबात में ट्रॉफियां भी तकसीम की। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर में सड़कों की तोसी और तामीरी कामों के लिए अराजियात का हुसूल एक बड़ा मसला बना हुआ है। GHMC ने इस काम में तेजी और शफाफियत पैदा करने की गर्ज से एक अलहदा शोबा कायम किया है। बिलुमूम हुसूल अराजी में रुकावटों की असल वजह बल्दिया के टाउन प्लानिंग शोबे और महकमे माल के माबैन तालमेल का फुकदान होता है। इसलिए इस नए शोबे में अब बल्दिया के अलावा महकमे माल के मुलाजिमीन, 20 इंजीनियर्स, 10 सर्वेयर्स, एक रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर और एक रिटायर्ड पुलिस अहदेदार भी होंगे। इस शोबे की क़यादत GHMC में एडिशनल कमिश्नर का रुतबा रखने वाला अहदेदार करेगा। चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह के साथ शदीद इख्तलाफात के बाद पंजाब के वजीर नौजी सिद्धू ने काबीना से इस्तीफा दे दिया। 10 जून को कांग्रेस के सदर राहुल गांधी को रवाना करदा मकतूब की कापी आज उन्होंने चीफ मिनिस्टर को रवाना कर दी। 6 जून को कलमदानों में तब्दीली के वक्त नौजी सिद्धू को, जो वजीर मजालिस मकामी, टूरिज्म और कल्चरल अफेयर्स के कलमदान रखते थे, बदल कर वजीर बरकी मुकर्रर किया गया था और वह तब से चीफ मिनिस्टर से नाराज थे। सिद्धू ने अपना इस्तीफा देने के बाद 1 माह तक इंतजार किया और उन्हें तवक्को थी कि चीफ मिनिस्टर उनसे मसालहत करेंगे, लेकिन आज बिलाकर उन्होंने मुस्तफ़ी हो जाने का बरसराम ऐलान किया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए अपना मकतूब इस्तीफा जो राहुल गांधी को लिखा था वो भी ट्वीट कर दिया। इसी दौरान पंजाब के वजीर राजेंद्र सिंह बाजवा ने कहा कि सिद्धू को अपना मकतूब इस्तीफा पार्टी सदर को नहीं भेजना चाहिए था। उन्होंने सिद्धू पर जोर दिया कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें और चीफ मिनिस्टर से बातचीत करते हुए मसले की यकसुई कर लें। उन्होंने कहा कि पंजाब और पंजाब की हुकूमत को सिद्धू की शदीद ज़रूरत है, वो एक ज़हीन और बासलाहियत आदमी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।